before explaining that thought, as we can see, balloons are here. So by looking at those balloons, one short story we have from Karbi Anglong, Delhi. Yesterday, a peace treaty has been signed. Respected teachers and my dear friends, I, Chimpi, and I, Navjyoti, welcome you all on this auspicious occasion of Teachers' Day. A teacher is a symbol of love, creator of human society, source of inspiration, and our guide. A teacher is always with us to give us the light of education. my dear friends, as we all know that we are gathered here to celebrate Teachers' Day. This Om Sahana Bhavatu. Om Sahana Bhavatu, Sahano Bhunattu, Sahaviryam Karvavahai, Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. chief guest Mohan Kanwar sir, principal sir, and our supervisor sir. So please. A soul to the universe, wings and life to everything. Music is a piece of art that goes in the ear straight to the heart. I would like to request the students to come over here for the welcome song and fill the cup of happiness. जिसे कोई ना लूटे
dedicated teachers, so please put your hands together for Niharika. God, the respected principal, teachers, parents, seniors, and my dear friends. As all of us know, we have gathered here to celebrate Teachers' Day. We celebrate Teachers' Day on the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was a teacher par excellence and also one of the successful presidents of India. The light of God, the beacon in the dark, and the hope that give a heartily respect to honor our teacher in our daily lives. As without a good teacher, we all are incomplete in this world. As Joyce Meyer rightly quoted, teachers can change life with the right mix of joy and challenges. But if we want to draft an impressive speech honoring and highlighting their importance, here are some tips and ideas to express our deepest gratitude, epitome of our strength. The full form of teacher is T for talented, E for enthusiastic, A for amazing, C for Teachers' Day. Here I conclude my speech. Thank you. Try to build normal qualities in us, and they care for us. Dance is the language of soul. Dance is surely the most basic and relevant of all forms of expression. Now, I would like to call the student for group dance.
Sit down. पहले अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है? मेरा नाम संगीता, रोहित, सूरज, प्रांजीत। तो आज बहुत सारे एब्सेंट है। खैर छोड़ो, कैसे हो सब? अच्छा है बच्चों, ठीक है। वैसे हमेशा ही ठीक रहना बहुत जरूरी है, और उससे भी जरूरी है अपने आप में खुश रहना। दीदी आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बच्चों, आज आप लोग को देखकर मुझे अपने दिन याद आ गए। अपने दिन? कैसे दिन? अपने दिन मतलब पहले के दिन, जब मैं भी आप लोग की उम्र की हुआ करती थी और सपना देखती थी। कौन सपना? अरे सपना मतलब कोई लड़की वाली सपना नहीं। तो सपना मतलब जिंदगी का लक्ष्य, जिंदगी में आगे बढ़ के क्या करना है, क्या बनना है, उसके बारे में कल्पना करना। आपका लक्ष्य का टीचर बनना था? हाँ, टीचर बनना ही था, लेकिन मुझे यहाँ नहीं पता था कि टीचर बनना बहुत बड़ा जिम्मेदारी भरा काम होता है। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी मतलब जब मैं पहली बार टीचर बनी थी, मैं सोचती थी टीचर का काम सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, लेकिन मैं गलत थी। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि टीचर सिर्फ स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता, बल्कि उसे बनाता भी है। तो हो गई नहीं जिम्मेदारी वाली बात। टीचर आप लोगों को सिर्फ स्कूल की परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन की परीक्षा के लिए भी तैयार करता है। दीदी आप कुछ और भी तो बन सकती थी, टीचर ही क्यों बनी? हाँ, बन सकती थी, लेकिन टीचर बनना मेरा बचपन का सपना था। रुकावटें तो बहुत सारी आई, लेकिन मैं डगमगाई नहीं। और सच कहूँ तो जो खुशी मुझे आप लोगों को पढ़ाकर मिलती है ना, वो मुझे और कहीं नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोग सोचते होंगे ना, टीचर बनना बहुत आसान है, लेकिन नहीं, टीचर बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी भरा काम होता है। टीचर एक पीढ़ी को आगे ले जाता है और समाज को अंधेरे से मुक्त करता है। वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे ना, आप अभी जैसे जी रहे वैसे ही जीते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो कुछ वर्ष होगा, उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेगी, असलियत सामने आएगा, जिंदगी ढंग बदलती। और जब ढंग बदलता है ना, तो जिंदगी का रंग भी बदलता है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, अभी कुछ ही देर में IAS आती होंगी, मैं भी उनकी तैयारी के लिए जाती हूँ। आप लोग भी उनकी स्पीच के लिए तैयार रहना, ठीक है? भाई मुझे तो टीचर नहीं बनना। लेकिन क्यों? अभी टीचर ने कहा ना, टीचर बनना जिम्मेदारी का काम है, और मुझे टीचर जिम्मेदारी लेना नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे पर जिम्मेदारी आएगी तो तुम खुद ब खुद सीख जाओगे। अच्छा, और सुना है बहुत बड़ी IAS आ रही है। बड़ी? कितनी बड़ी? अरे खेल छोड़ो, आ रही होंगी, चलो बैठो। Good afternoon. We are proud to have Ms. Srishti Tiwari with us today. So I'd like to see her to come upon here and give her speech. नमस्ते सभी को। Being an IAS, ये मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। एक सिविल सर्वेंट के जीवन में बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस आते हैं, पर कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और अगर आपको इसके बारे में कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम क्या आपने पहले ही अटेम्प्ट में UPSC क्रैक किया था? बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए। Being an IAS, ये मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। एक सिविल सर्वेंट के जीवन में बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस आते हैं, पर कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और अगर आपको इसके बारे में कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम क्या आपने पहले ही अटेम्प्ट में UPSC क्रैक किया था? बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए। पहले अटेम्प्ट में फेल, दूसरे में फेल, ऐसे करते करते मैंने UPSC 5वें अटेम्प्ट में क्रैक किया। आपके जिंदगी में कोई चैलेंजेस नहीं आई थी मैम? चैलेंजेस वो तो मेरे खास थे। मैम आपको फी लेवल तक पहुंचते पहुंचते ऐसा नहीं लगा तो आपको अपने लक्ष्य छोड़ देना चाहिए? हाँ, हर रोज लगता था गिव अप कर दूं, पर
नहीं किया, क्योंकि जब आप एक लड़की होती है और वो भी एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, जहां आपकी शादी 22 साल में करवाई दी जाती हो और ऊपर से आपको इंग्लिश भी नहीं आती हो और आप फेल में फेल हो रहे थे। हाँ, हर रोज लगता था गिव अप कर दो। एक्चुअली डेफिनेटली कर देती, पर उसी समय एक बहुत अच्छी व्यक्ति ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई। क्या आप सब वह बात सुनना चाहेंगे? तो सुनिए। 1981 में यूएस में एक टीचर हुआ करते थे। वे अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाते थे। उन्होंने एक दिन सोचा कि अपने क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। फिर वो अपने क्लास में गए। फिर क्लास में जाके उन्होंने अपने क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। उन्होंने ग्रुप ए को कहा कि तुम एक मटका बनाओ, पॉट। तुम एक पॉट बनाओ जो कि परफेक्ट होना चाहिए और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। पर उसी समय उन्होंने ग्रुप बी को कहा कि तुम मटके बनाओ पर उसकी फिक्र मत करो, उसकी क्वालिटी परफेक्शन की फिक्र मत करो, बस तुम मटके बनाओ। फिर उन्होंने 10 दिन का समय दिया था। फिर जब रिजल्ट का समय आया तो वे टीचर सरप्राइज हो गए थे। क्यों, आप सबको पता है? क्योंकि ग्रुप बी के पॉट जो उन्होंने कहा था क्वालिटी और परफेक्शन में ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके मटके नियरली सब मटके बहुत परफेक्ट थे। क्योंकि ग्रुप ए जो है उन्होंने सिर्फ मटके के परफेक्शन में अपने टाइम गुजार लिए थे, पर जो ग्रुप बी है उन्होंने ट्राई किया। उन्होंने एक मटका बनाया, फेल हो गए। उन्होंने दूसरा मटका बनाया, फेल हो गए। फिर ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे मटके बनाए और वो मटके परफेक्ट हो गए। इसलिए आप सब फेलियर से डरिए मत। जिंदगी में फेल तो बहुत होंगे, पर आपको अपने मन में ठानना है कि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। इसलिए आप जब फेल होंगे तो कभी मत डरना। और वह बात मुझे कहने वाली आज हम सब के सामने मौजूद है। और जब आप उनसे पहली बार मिलेंगे तो आपको लगेगा कि लाइफ होपलेस है। शी इज नन अदर देन माई टीचर। उन्होंने मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट किया। एक बार तो मेरे परिवार ने मेरी शादी करने की ठान ली थी। फिर उसी समय ये गई वहां पे और इन्होंने मेरे परिवार को समझाया। इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इन्होंने मुझे कहा दैट यू कैन डू इट। और मैं तो यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम देते देते थक गई थी। फिर इन्होंने मुझे कहा यूपीएससी इतना टफ एग्जाम क्यों लेता है? क्योंकि आपको देश का बहुत बड़ा संविधान संभालना होता है। इसलिए आज अगर उस समय ये मेरे साथ नहीं होती तो आज मैं आप सबके सामने नहीं होती। इसलिए आप फेलियर होने से कभी मत डरना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। तो आप सभी को कुछ और प्रश्न है? ठीक है, तो I would like to say in last that teachers are the real winners, क्योंकि वही एक इंजीनियर को बनाते हैं, वही IAS को बनाते हैं और सबसे बड़ी बात वह एक इंसान को इंसान बनने के लायक बनाते हैं। I always consider that teachers are the real winners and they will always remain the same. Thank you. And all my dear students, at the very outset, I pay my homage to all gurus and the respected teacher of our country, Dr. and all my dear students. At the very outset, I pay my homage to all gurus and the respected teacher of our country, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was the second President of India to Teachers' Day. I welcome our respected chief guest, Sri Mohan Kaur sir. I also welcome all the teachers
students of this Vidyalaya and former students, those who are present today. প্ৰায় স্কুলতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম পাতি শিক্ষক দিৱস নতুবা অইন কোনো যিকোনো দিৱস পতাটো দেখা পোৱা নাযায়। কিন্তু ইয়াত যি পৰিৱেশেৰে এই শিক্ষক দিৱসটি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুখিনি দিশত আগবাঢ়িব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া কথা সেই সময়ত ভাৱ হৈছিল প্ৰাইভেট স্কুলবিলাক নিৰ্মাণ কৰি কি ফল হ'ব, কোনো উন্নতি নহয়। চৰকাৰে যেনেধৰণে সহায় সাহায্য আগবঢ়াব লাগে ঠিক তেনেধৰণে সহায় সাহায্য আগবঢ়ায়। কিন্তু এতিয়া কেইবছৰমানৰ পিছত নিমন্ত্ৰণ পাই আহিছোঁ, যি দেখিছোঁ সঁচাকৈ স্কুলখন এনেধৰণৰ স্কুল যদি চৰকাৰে স্থাপন কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই স্কুলবিলাকত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বা শিক্ষকসকলৰ মনবিলাক বহু আগবাঢ়ি যাব। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুলত পঢ়ি নিশ্চয় ভৱিষ্যত নিজৰ চৰিত্ৰ গঠন সংস্থাপন হ'বলৈ সুবিধা পাব। এতিয়া কথা হ'ল মই হয় এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ। মই মোৰ সামান্য জ্ঞানেৰে কিছু বক্তব্য লিখি আনিছোঁ, সেইখিনিকে আগবঢ়াবৰ কাৰণে